Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and now today we are going to study English grammar, and in English grammar we were studying change the voice. So let us continue with our topic, and now our today's heading will be simple present tense, versus simple past tense. Simple present tense is also called present indefinite tense. There is another name for it, present indefinite tense. And simple past tense is also called past indefinite. But we should not study these names because they are never asked, almost never. So simple present tense and simple past tense. See the formula. For active voice, the formula is subject plus V1 S or ES plus object. It's a simple sentence structure. Subject, verb, object. And its passive voice will be object plus is. This is V1, first voice, present tense. So here it will be either is or am or are. Any one of these three depending upon the object. Plus V3 plus by and plus subject. This is our passive voice. In simple past tense, it is even easier. It is subject plus V2. Since the question is in the simple past tense, it is V2. What is V2? Past tense of the verb. Second voice, second form of the verb, and object. Passive voice will be object plus, since the verb is V2, past tense, we will use either was or were. If the subject is singular, we will use was. If the subject is plural, then we will use were. So here it is object. Was or were plus V3 plus by plus subject. This is our formula, simple formula for active and passive voice. Is it not visible to you properly? Will magnify it. Can you see it clearly now? Still blurred. Now you can see it. Let us now see the examples. Active voice. Simple example. Sheetal writes a letter. Remember one thing, there is a rule called the subject-verb agreement rule. And according to this rule, in simple present tense, if the subject is singular, then the verb will be plural. Only in simple present tense, if the subject is singular, the verb will be plural. मतलब यहाँ right होना चाहिए, right लिखना सही है या rights लिखना सही है, तो rights लिखना सही है. क्यों? क्योंकि शीतल एक है, शीतल is singular, so verb must be plural. Verb जो है वो plural होना चाहिए. हाँ, अगर यहाँ शीतल and शांति आता था, शीतल and शांति राइट अ लेटर, ऐसा होता था शीतल एंड शांति राइट अ लेटर, क्योंकि शीतल एंड शांति अब प्लूरल हो गए, दो लोग हो गए, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा. ये रूल याद रखना. दिस रूल इज फॉलोड ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज प्लूरल. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब इज सिंगुलर. आई एंड यू आर एक्सेप्शंस. तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल और कॉन्कॉर्ड. सो नाउ सी पैसिव वॉइस क्या होगा. दिस इज सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. वर्ब में एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा वो इस पर डिपेंड करेगा. सिंगुलर है तो लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा. हाँ, आई के साथ कभी नहीं लगता, यू के साथ कभी नहीं लगता एस और ईएस प्रेजेंट टेंस. सो पैसिव वॉइस. शीतल राइट्स अ लेटर. वेरी सिंपल. अ लेटर
अब राइट्स जो वर्ब में एस और ईएस कब लगता है? ओनली प्रेजेंट टेंस में ही लग सकता है। तो हियर द वर्ब विल बी इज, सिंगुलर प्रेजेंट टेंस। अ लेटर इज, राइट द थर्ड फॉर्म, थर्ड वॉइस, रिटन बाय शीतल। शीतल लिखती है एक पत्र, एक पत्र है लिखा जाता द्वारा शीतल के। शीतल एक पत्र लिखती है, एक पत्र है लिखा जाता द्वारा शीतल के, जरिए शीतल के। सो वॉइस इज चेंज, दिस इज फर्स्ट वॉइस V1 एंड यहां पर हमने उसको कर दिया थर्ड वॉइस चेंज हो गया। सो अ लेटर इज रिटन बाय शीतल एंड इन सिंपल पास्ट टेंस इट इज वेरी इजी। सी शीतल रोट अ लेटर। अब रोट कौन सा वॉइस है? V2, इट इज द सेकेंड वॉइस, हम उसको थर्ड वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। सो शीतल रोट अ लेटर, शीतल रोट अ लेटर। सो पैसिव वॉइस विल बी अ लेटर, सिंस देयर इज रोट, second voice, second verb, second form of the verb, past tense, so we will use either was or were. So a letter is singular, so that's why was, a letter was. The third voice will be V3. A letter was written by Sheetal. A letter was written by Sheetal. But you will say, sir, so easy an example, but such easy examples are never asked in the exam. I will say, don't worry. The basic format remains the same. The only thing is that they add some additional portion to make the question difficult. Otherwise, the question is not difficult at all. For example, see, Tom kills Jerry. Tom kills Jerry in the morning. In the morning. In Joseph's house. Now we will say, sir, lengthy sentence. We can add many other things. Tom kills Jerry in the morning in Joseph's house. Or what else can we write? Tom kills Jerry in the morning in Joseph's house. In Joseph's house, in front of my house. But that will be useless. The only important thing is this much. Tom kills Jerry. Jerry is killed by Tom. This additional part is only to scare us, only to make us nervous, only to test our understanding. Tom kills Jerry. So we'll write Jerry is killed. Jerry is killed. Now we can write by Tom also, but it is better to write Jerry is killed in the morning. Jerry is killed in the morning in Joseph's house by Tom. Jerry is killed in the morning in Joseph's house by Tom. We could write Jerry is killed by Tom in the morning in Joseph's house. That also was correct. But it is better to write this by Tom at the end. And what will be the question here then? So it will be Tom killed Jerry. Here it is kills. And why kills? Why S? Because Tom is singular, kill is plural. And this rule is followed only in simple present tense. Subject verb agreement rule. Means concord. Let's see now. Tom killed Jerry. Here it will be Tom killed Jerry in the morning. So before using is, am, are or was, were, look at the verb, whether it is in the present tense or in the past tense. And the verb takes S or ES only in the present tense. Tom killed Jerry in the morning in Joseph's house. In Joseph's house. So passive voice will be Jerry was killed. Now it will be Jerry was, because the verb is in the past tense, so we will use was. And Jerry is singular. Singular past tense is was. Jerry was killed. This killed is V2 and this killed is V3. This is V3. This is V2. Otherwise you will say the voice is not changed. Tom ने मार डाला जेरी को
टॉम ने जेरी को मार डाला, जेरी मार दिया गया, यहाँ जो किल्ड है ये मार दिया गया वाला है। जेरी वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग in Joseph's house by Tom. So you can note down the examples. Note down the examples. I am going to erase it now. The next example, active voice. The government of India respects every religion. The government of India respects every religion. Passive voice. See here the subject has become a phrase, lengthy sentence. The government of India is the subject. Respects is the verb and every religion is the object. Here respects because the government of India is considered to be a unity. Eki government. So it will be every religion. Every religion. The government of India respects every religion as per the constitution. We can write, or the government of India respects every religion. Let it be. Every religion is respected by the government of India. Every religion is respected by the government of India. Now here it will be the government of India, the question will be in the past tense. The government of India respected. The verb is already in the past tense, respected every religion. The government of India respected every religion. Passive voice will be every religion was respected. Don't write is because the question is in the past tense, respected, ed. Every religion was respected by the government of India. Okay, this respected is V3 and this respected is V2. Now I will give a few examples for your practice, then we will move to another type. So active voice, and this active voice is every Tuesday for the last 20 years the rich man feeds the poor people living on the footpath. Every Tuesday for the last 20 years, the rich man feeds the poor people living on the footpath. See, so you may say, oh my God, such a lengthy sentence, how are we going to change the voice, sir? The only part we have to consider is the rich man feeds the poor people. Only this part is important. Instead of giving it
to you as an assignment. I think I myself should write the answer. So it will be every Tuesday for the past 20 years. For the past 20 years, the poor people living on the footpath are the people, we will take it, the people living on the footpath, the poor people, I think it is, yeah, the poor people, poor. In America, PRR is pronounced as poor people. The poor people living on the footpath are, since these are many people, we are using the verb are. Feed, past tense of feed is fed by the rich man. This is the lengthy example, but easy. Every Tuesday, for the past 20 years, the poor people living on the footpath are fed by the rich man. It's Tuesday as well as Tuesday. And active voice here. I'll give another example here. The wicked man. Wicked man is a villainous person, villain जैसा आदमी, गुंडा, या क्या कहते हैं जिसको, टेढ़ा आदमी, अमरीश पुरी, है ना, बुरा आदमी जिसको कहते हैं. द विकेड मैन, अमरीश पुरी बुरा है या नहीं आप सोचो. द विकेड मैन looted the ships for a long time. The wicked man looted the ships, looted every ship which was, the wicked man looted every ship which he saw. Now we have to change the voice. The wicked man looted every ship which he saw. The wicked man looted every ship which he saw. So this will become a little confusing for you. The wicked man looted every ship, because we can change two voices here. The wicked man looted every ship which was seen by him. Every ship which he saw was looted by the wicked man. There will be two passive voices. So that's why I'll change it. The wicked man looted every ship which contained wealth in it. So the wicked man looted every ship which contained wealth in it. So its passive voice will be very simple. Every ship which contained wealth in it was looted. Every ship was looted. See, the important part is the wicked man looted every ship. This only is important. The wicked man looted every ship. Every ship was looted by the wicked man. So every ship which contained wealth in it was looted by the wicked man. Might be a sea pirate. So these were the examples on simple present tense against simple past tense. Now we will proceed to study present continuous tense against past continuous tense.
Present continuous tense, which is also called present progressive tense, and past continuous is also called past progressive tense. So it's past present continuous tense, which is also called present progressive tense, अपूर्ण वर्तमान काल जिसे कहते हैं. इफ एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करते समय अगर कोई एक्शन चल रही होगी तो उस समय हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कभी कभी अगर हमने फ्यूचर प्लान भी बना लिया है और पक्का है तो भी हम यूज करते हैं फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे वी आर गोइंग टू आगरा नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते आगरा जा रहे हैं यानी प्लानिंग हो गई है. अदरवाइज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं? जब अभी एक्शन चालू है, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड वगैरह वगैरह. एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. We call past continuous tense as past progressive tense also. Past progressive tense. The word tense comes from the Greek or Latin word tempus, which means time. Tense का मतलब time होता है. एक मीनिंग tense का time होता है, दूसरा tense यानी टेंशन भी होता है. Let us see. Active voice. So present continuous tense, subject plus is or am or are plus V1 plus ing plus object. Now see here, this is V1 plus ing है, ठीक है. और ing फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही लगाया जा सकता है, V2 को कभी ing नहीं लगाते. So this is V1 plus ing. और पास्ट टेंस में क्या होगा? सॉरी, पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज और एम और आर प्लस बीइंग प्लस V3, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. इट्स वेरी वेरी सिंपल. फॉर एक्टिव वॉइस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस आइदर वॉज सिंगुलर और प्लूरल इज वर्ब. Plural is verb, plural. V1 plus ing plus object. And passive voice is object plus was or were plus being plus V3, plus by plus subject. So आपने दोनों तरफ देखा है कि in active voice we use V1 plus ing, writing, talking, write plus ing, talk plus ing, walk plus ing, think plus ing. So और यहाँ हो जाएगा being plus V3. So यहाँ V1 में ing लगा, यहाँ V3 हो गया, तो वॉइस चेंज हो गया. एग्जाम्पल नंबर 1, सिंपल एग्जाम्पल. I am writing an essay. मैं हूं लिख रहा एक ऐसे. एन ऐसे एक निबंध. एन ऐसे इज बीइंग रिटन, जा रहा है लिखा. एक निबंध है, जा रहा लिखा, द्वारा मेरे, जरिए मेरे. एन ऐसे इज बीइंग रिटन बाय मी. सो दिस राइटिंग इज चेंज टू बीइंग रिटन. इसमें बस यही काम करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और V1 में ing तो बीइंग प्लस V3 कर देना है. हियर इट विल बी I was writing an essay. I am giving simple example. I was writing an essay. Remember, writing में there is a single T. Some students write double T there. I was writing is single T. I was writing an essay. An essay, since it is an essay, only one essay, so it is was, past tense. An essay was being written by
आई चेंजेस टू मी, आई का मी हो जाता है, आपको मालूम है पैसिव वॉइस में। ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, और वी का अस हो जाता है, यूएस अस। एक्टिव वॉइस। They are playing cricket. They are playing cricket. So it will be. See, आप लोग it's a very easy example. तो इसको हम डिफिकल्ट बना सकते हैं, बट वो डिफिकल्ट होता नहीं है। वी कैन राइट दे आर प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग, और हम कुछ भी उस पर ऐड कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, जस्ट क्लोज टू माई बिल्डिंग, और कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो सब यूजलेस होता है। मेन तो यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी लगा हुआ एंड ऑब्जेक्ट। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग played by them, cricket is being played by them। so यहाँ playing था और उसका इधर हुआ being played, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। ओके, सो इट्स एक्टिव वॉइस। they were playing cricket। very basic grammar, very easy। रिमेंबर WERE को वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर्ब पढ़ते हैं। WERE इज वर्ब। अगर इसके बाद वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड आया तो र को नहीं पढ़ना, वर्ब। दे वर प्लेइंग ऐसा पढ़ते हैं। और अगर यहाँ वॉवल साउंड आया तो आखिरी का र पढ़ना, दे वर पढ़ना। सो दे वर, क्योंकि WEAR वेयर होता है। सो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, पैसिव वॉइस। क्रिकेट was being played by, देखा क्या हो जाता है, them। so playing था तो क्या हो गया, being played हो गया, है ना। they था तो वर आया, बहुत सारे लोग थे तो वर आया। क्रिकेट एक ही गेम का नाम है इसलिए was आया, बाकी आपको समझता है ना। अच्छा, रिमेंबर वन मोर थिंग कि हम ये जो वॉइस चेंज कर रहे हैं, after this topic I have planned to start teaching figures of speech, and then I will start explaining text from the textbook to you। फिर मैं टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब जो पोएम्स वगैरह हमारा 1.1 एंड जो भी है लेसन्स, प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन, वी विल स्टार्ट दैट। सो इट्स वेरी इजी। तो आई विल गिव ओनली 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइम। अब कुछ रिमेंबर, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका वॉइस चेंज नहीं होता, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका वॉइस चेंज नहीं होता। ऐसे वर्ब्स को कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इंट्रांसिटिव वर्ब्स यानी ये अकर्मक क्रिया होते हैं। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं और चेंज द वॉइस बोलूं तो आप नहीं कर सकते। जैसे द माउस डाइड, चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करके बताओ, नहीं होता। क्या लिखेंगे, डाइड बाय माउस, माउस बाय डाइड, द बाय डाइड, कुछ ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि द माउस डाइड उसके बाद कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ही उसका वॉइस चेंज होता है। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये याद मत रखना, नोबडी विल एवर आस्क यू, कोई कभी पूछता भी नहीं है। पहली बात, इंट्रांजिटिव वर्ब। द माउस डाइड, अनीता केम, अनीता केम, क्या लिखेंगे, केम बाय अनीता केम, कुछ नहीं होता, इसका वॉइस चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और हिंदी में इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। हिंदी में पता है सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हिंदी में
सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता और वर्ब को कहते हैं क्रिया और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। तो कर्ता, क्रिया और कर्म। सो कर्ता, क्रिया, कर्म। तो जिस वर्ब के बाद कर्म आता है उसको सकर्मक कहते हैं, ऑब्जेक्ट आता है तो सकर्मक कहते हैं, और जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उसे अकर्मक कहते हैं, अकर्मक। मैं ये इसलिए समझा रहा कि हिंदी की क्लास में मुझे कभी समझा नहीं सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होता है, बट व्हेन आई understood transitive and intransitive verbs in English grammar, then I came to know what sakarmak and akarmak kriyas are. चलो ठीक है। वैसे ये कोई पूछता नहीं है एग्जाम में, कभी आता नहीं है सकर्मक अकर्मक एंड ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और जिन जिन का भी वॉइस चेंज होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ट्रांसफर, बट ये सब याद मत रखो। कुछ वॉइसेस ऐसे चेंज होते हैं कि वो डिफरेंट होते हैं, रूल्स अलग ही लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई नो यू, इसका चेंज द वॉइस करेंगे आप, आई नो यू तो क्या होगा, यू आर, दिस इज एक्टिव वॉइस। आई नो यू तो क्या हो जाएगा, यू आर नोन। बाय में लिखे तो आधा मार्क कट गया, टू मी होगा। आई नो यू, यू आर नोन टू मी, टू मी होगा, बाय मी नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्मोक फिल्ड द रूम, स्मोक फिल्ड द रूम, स्मोक फिल्ड द रूम, पैसिव वॉइस विल बी द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक, बाय स्मोक नहीं होगा। स्मोक फिल्ड द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक, बाय स्मोक नहीं होता। तो ऐसे कुछ रूल्स है जनरल, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वो जनरली आता नहीं एग्जाम में, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको वो थोड़ा सा समझा दिया ऐसे ही, है ना। अदरवाइज दीज थिंग्स आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, ओनली फॉर नॉलेज। अब आपको मैं थोड़े क्वेश्चंस के एक दो करा देता हूँ, देन वी विल स्टॉप। नाउ सी वी विल चेंज द वॉइस ऑफ अ फ्यू वर्ब्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ और अभी एक दो जो एग्जाम्पल्स पढ़ा है, ये एग्जाम में कभी नहीं आते। हाँ, जो लोग रेलवेज की एग्जाम, बैंकिंग की एग्जाम देते हैं उसमें ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन जानबूझकर पूछते हैं, वो हमारा ग्रामर चेक करने के लिए, ठीक है। रेलवेज में आप जॉब चाहते हो, बैंक में कोई जॉब चाहते हो तो उनके एग्जाम्स में ऐसे आते हैं। अदरवाइज अपने स्कूल वाली एग्जाम में ये सब आड़े टेढ़े क्वेश्चन जनरली 99% चांसेस है कि नहीं आते। और क्वेश्चन वाले चेंज द वॉइस जो है मेरे पास चेंज द वॉइस का रिकॉर्ड है मार्च 1996 से लेकर के अब तक। चेंज द वॉइस में क्या क्या पूछे, ग्रामर क्वेश्चन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अब तक मार्च 1996 में कितने क्वेश्चन पूछे थे ग्रामर के बोर्ड एग्जाम में, अक्टूबर 1996 में, मार्च 1997, अक्टूबर 1997, यानी 1996 से लेकर अब तक मैंने क्वेश्चंस कौन कौन से आए बोर्ड एग्जाम में उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया है। तो किसी दिन मैं उसका प्रिंट आउट आपको दूंगा तो आप वो ग्रामर सॉल्व करके देखना पुराना वाला। लेट अस नाउ सी, अगर ऐसा आ जाए तो व्हाट वाले क्वेश्चन में चेंज द वॉइस आ जाए तो फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइसेस, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी, चेंज द वॉइस, व्हाट डू यू सी। ये एग्जाम में नहीं आता, समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो और भी ज्यादा अच्छी बात, टेंशन नहीं लेने का। व्हाट डू यू सी, पैसिव वॉइस, व्हाट इज सीन बाय यू, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लिखना, पैसिव वॉइस है बट क्वेश्चन मार्क आएगा, नहीं तो आप बोलेंगे अच्छा ये आंसर है सर, तो नहीं, क्वेश्चन मार्क विल ऑलवेज बी देयर। सो व्हाट डू यू सी, और पता है मॉडर्न इंग्लिश में डू और यू को मिलाकर है ना जू पढ़ते, जू, व्हाट यू सी, वेयर यू लिव, वेयर यू लिव, व्हाट यू लाइक, ऐसा पूछते हैं। डू यू को जू पढ़ते हैं, जू प्ले क्रिकेट, जू गो टू स्कूल, डू यू को जू बोलते हैं। So what is seen by you? Active voice. Did. What did she like? What did she like? Passive voice. What was liked by her?
व्हाट डिड शी लाइक, अब यहाँ डिड है इसलिए वॉज कर दिया हमने, और देखो लाइक हो गया, यहाँ क्या लाइक है। अच्छा इसमें एक रूल और मालूम होता है आपको, जिस भी सेंटेंस में डिड आ जाए या डू आ जाए या डज आ जाए, वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यहाँ देखो डिड है फिर भी हमने लाइक प्रेजेंट टेंस लिखा है, और प्रेजेंट ही लिखना चाहिए, अगर आपने लाइक ही लिख दिया ईडी लिख दिया गलत हो गया। सो दिस इज V1, ये V1 है, ये V1 है, और यहाँ जो आया दिस इज V3, वॉइस चेंज हो गया। व्हाट डिड शी लाइक, व्हाट वाज लाइक बाय हर, व्हाट डिड शी लाइक उसको क्या पसंद आया, व्हाट वाज लाइक बाय हर उसके द्वारा क्या पसंद किया गया। डज वाला लिखते क्या, एक्टिव वॉइस। What does they, sorry, what does he write, what does he write, पैसिव वॉइस। अब डज यानी क्या है, प्रेजेंट टेंस, डू यानी क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो देखो डज आ गया तो राइट लिखे, राइट्स नहीं लिखे। सो व्हाट डज ही राइट, तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, डज इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, व्हाट इज रिटन बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा, व्हाट इज रिटन बाय हिम। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बना सकते हैं हम, ऑलमोस्ट सभी WH क्वेश्चन पे बना सकते हैं, है ना। जैसे हु वाला बना सकते हैं, वेयर पे भी बना सकते हैं, हाउ पे भी बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ब्स पे बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं आता इसलिए मैं बहुत डिटेल में ये नहीं पढ़ाता हूं। एक एग्जाम्पल आपके लिए सैंपल लिख लो, what do they play, ये आप सॉल्व करके बताना। what do they play, आप इसका आंसर देखना। who वाला देखो, एक्टिव वॉइस, who punished the boy। अब इसके दो आंसर्स होते हैं, PV नंबर 1 एंड PV नंबर 2। PV नंबर 1 देखो क्या होगा, Who was the boy punished by, एक ये भी होता है, और दूसरा जो ज्यादा पसंद करते हैं लोग ये वाला है सेकंड, बाय whom, द्वारा किसके, जरिए किसके, Who punished the boy, किसने पनिश किया उस लड़के को, द्वारा किसके, by whom was the boy punished। और एक एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस, who ate the fruits, who ate the fruits, किसने फ्रूट्स खाया, तो क्या लिखेंगे हम, बाय whom were the fruits। अब वर क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो वॉज लिखे थे तो एक ही लड़का था, यहाँ फ्रूट्स बहुत सारे इसलिए वर, बाय whom were the fruits eaten। अब आप एक करके बताओगे, ये एग्जाम में नहीं आता इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, वरना चाहे तो मैं वेयर पे भी क्वेश्चन बना सकता, और विच पे भी बना सकता, हाउ पे भी बना सकता, बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मेरे पास इतिहास रखा हुआ है, और स्कूल्स के भी एग्जाम में कहीं पर भी पूछे नहीं है, ये रेयरेस्ट केस ऑफ द रेयर केस में से एक है, पूछे तो पूछे, वरना 99% नियरली चांसेस है कि नहीं पूछेंगे, इसलिए मैं इस पर ज्यादा वेटेज, ज्यादा इस पर एम्फोसिस नहीं देना चाहता हूँ। Who teaches grammar, या आप इसका आंसर लिखोगे, Who teaches grammar, teach का क्या होता है, taught, teach, taught, taught। Okay, so we will stop here. These are your examples. You could not see. Who punished the boy, who was the boy punished by, second है by whom was the boy punished, who ate the fruits, तो क्या होगा, who were the fruits eaten by, या by whom were the fruits eaten। दो आंसर्स बना सकते हैं, who ate the fruits, तो उसका एक आंसर क्या होगा, PV नंबर 1, who were the fruits eaten by, who were the fruits eaten by, और एक क्या होगा इजी वाला,
By whom were the fruits eaten? Who teaches grammar? ये आप बना लोगे इसका. So we'll stop here. Have a nice day. Enjoy your studies.